Good morning, everyone. Welcome back to the Operation Research Lectures. Today we are going to study transportation problems. हमने already transportation problems के theory cover कर लिए हैं. So introduction और terminologies जो है transportations में वो हमने already देख लिए हैं. But then too, let us revise. So transportation problem is a special kind of linear programming problems which goods are transported from a set of sources to destination subject to the supply and demand of the source and destination respectively, such that sorry, such that the total cost of transportation is minimized. Thus, transportation problem deals with a special class of linear programming problem in which the objective is to transport a single commodity from several sources, also called as origin or supply or capacity center, to different destinations, also known as demand or requirement centers, at a minimum total cost. The given information in the problem is total supply at the origin, the total quantity demanded by the destination, the cost of shipping a unit of goods from a known origin to known destination. So basically the transportation problem is a special kind of linear programming जहाँ पे एक origin एक destination होता है. ठीक है, जैसे हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम्स किए थे नंबर ऑफ मशीन्स एंड नंबर ऑफ वर्कर्स या फिर नंबर ऑफ मशीन्स एज पर नंबर ऑफ लोकेशंस. ठीक है, वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स उसी सिमिलर बेस में चलता है. ठीक है, बट यहाँ पे कुछ और नए नए टर्म्स है हमारे पास. ठीक है, वी नो व्हाट इज मिनिमाइजेशन, वी नो व्हाट इज मैक्सिमाइजेशन. ठीक है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो कॉस्ट है, हमारा जो टाइम है वो मिनिमाइज करते हैं बेसिकली, या फिर जो भी एक्सपेंडिचर है वो मिनिमाइज करते हैं ताकि हमारा जो सेविंग्स है वो हो सके. मैक्सिमाइजेशन में हम हमारे प्रॉफिट्स, हमारे अर्निंग्स, हमारे प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं. ठीक है, सो दीज टू टर्म्स आते हैं. देन वी नो व्हाट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड. अगर हमारा जो चार्ट या टेबल है वो अगर बैलेंस्ड है, 3x3 है, 4x4 है, ठीक है, दैट इज 4x4 और 3x3 या 5x5, अगर ऐसे हमारा एक टेबल बनता है देन दैट इज बैलेंस्ड. बट अनबैलेंस में हम लोग क्या करते हैं, एक डमी कॉलम ऐड करते हैं, डमी रो ऐड करते हैं, राइट. सो वैसे ही डमी में व्हेन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज unbalanced, a dummy variable is used to even out demand and supply. ठीक है, एक डिमांड एंड सप्लाई को इवन आउट करने के लिए हमें एक डमी वेरिएबल ऐड करना पड़ता है. अ डमी वेरिएबल इज सिंपली अ फिक्शनल वेयरहाउस और स्टोर. ठीक है, एक फिक्शनल वेयरहाउस या फिर एक फिक्शनल स्टोर है जहाँ पे हम उसे समझेंगे कि दिस इज अ डमी वन. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है, इफ टोटल सप्लाई एट ऑल वेयरहाउस इज 35 यूनिट्स but total demand at all store is only 30 units, we create a fictional store with an additional demand of 5 units. The cost of shipping to the fictional store is usually zero. Now the transportation problem becomes balanced. So जो उनका कॉस्ट है डमी वेरिएबल का वो जीरो ही रहेगा. आप ऑपरेशन रिसर्च में कहीं भी डमी वेरिएबल्स या डमी एलिमेंट्स लोगे ना, तो आपको उसका जो कॉस्ट है, उनका जो प्रॉफिट है, उनका जो टाइम है, ठीक है, चाहे वो किसी भी यूनिट में बोला गया हो, वो हमें जीरो ही लेना है, वन या फिर कोई और नंबर नहीं लेना है. Then there is a concept called basic variable solution. If the number of occupied cells is equal to m plus n minus 1, that is number of independent constraint equation satisfying all the conditions. अब ये n m plus n minus 1 कैसे होगा वो हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे. Then degenerate solution is there. If number of occupied cells is less than m plus n minus 1, then the solution is known as degeneration or degenerate solution. Otherwise उसे कहा जाएगा non degenerate solution. Then prohibited routes. When it is not possible to transport goods from a certain sources to certain destination due to unfavorable weather conditions, road hazards, etc., the problem can be handled by assigning a very large cost, say m, or infinity to each of the route which are not possible. तो अगर कोई ऐसा रूट है ट्रांसपोर्टेशन में जहाँ पे हमें कॉस्ट बहुत ज्यादा है या फिर रेगुलर रूट्स में नहीं जा सकते, तो उसे हम जो लार्ज कॉस्ट है वो डिनोट करेंगे और उसको एम जो लेटर है उससे डिनोट करेंगे, दैट इज इन्फिनिटी टू ईच ऑफ द रूट्स विच आर नॉट पॉसिबल.
Now let us see the procedures or steps for solving these transportation problem. The procedure consists of two phases. The phases are as follows. Number one is finding the initial basic feasible solution in the first phase, and second, optimization of the initial basic feasible solution. That is the second phase. So finding the initial basic feasible solution, अगर initial basic solution हमें निकालना है तो क्या क्या methods है? So there are three types of techniques available to find the initial basic feasible solution. That is northwest corner method, least cost method, Vogel's approximation method. So NWCR, LCM and BAM. अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा solve this problem with the help of NWCR, that is northwest corner method, तो उसी मेथड से हमें ये सॉल्व करना है. ठीक है, तो जो मेथड पूछा जाएगा वो मेथड हमें यूज करना है. Now here we have an example. A company has three plants A, B and C for which capacities are 7, 10 and 18 units. It has four warehouses PQRS for which demands are 5, 8, 7 and 15 units. The unit transportation cost is as follows. Warehouses PQRS, plants ABC, right? And उन्होंने बोला है find initial basic feasible solution by northwest corner method, least cost method and Vogel's approximation method. तो हम सबसे पहले NWCR मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो हम टैबुलर फॉर्मेट में ये तरीके से हम उसे नंबरिंग देंगे. सो PQRS, ठीक है, ABC एंड A के जो वैल्यूज है, हमारे जो प्लान्स के वैल्यूज दिए गए थे, दैट इज 7, 10, 18 एंड 5, 8, 7 एंड 15. ठीक है, तो चार वेयर हाउस के प्राय हमें कॉस्ट दिए थे, दैट इज फॉर विच डिमांड्स PQRS का जो डिमांड है दैट इज 5, 8 एंड 7 यूनिट, 15 यूनिट्स, और जो थ्री प्लान्स है उनके 7, 10 एंड 18 यूनिट्स. अब उनको हम यहाँ पे डिनोट करेंगे. सो 5 और इस हिसाब से देखिए 8 एंड देन 7 एंड 15. ठीक है, तो टोटल हमारा 35/35 ऐसे हमारा एक डिमांड एंड सप्लाई हो रहा है. ठीक है, अब ये कैसे करना है? सो नोट, एरोज आर गिवन फॉर एन अंडरस्टैंडिंग पर्पज ओनली. स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ड्रॉ एन एरो. ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हम देखेंगे बार बार बिकॉज चार वेयर हाउस दिया है, PQRS दिया है, नंबरिंग आप देखेंगे 5 है P के लिए, 8 के लिए Q है, R के लिए 7 है एंड S के लिए 15 नंबर है. राइट, 5, 8, 7, 15 ये सीरीज आपको याद रखना है. देखिए वेयर हाउस P के लिए हमने 5 नंबर डिनोट किया है. ठीक है, Q में हमें 8 देना है, सो 8 हमें उसे बाइफरकेट करके देना पड़ेगा. 2 यूनिट A प्लांट में जाएगा एंड 6 यूनिट B प्लांट में जाएगा. अब ये कैसे जाएगा? तो हमारे पास प्लांट्स के लिए कुछ सप्लाई दिया है. देखिए A, B एंड C फॉर विच कैपेसिटीज आर 7, 10 एंड 18 यूनिट. सो A में सबसे पहले हमने कितना डिनोट किया? 5 डिनोट किया. राइट, अब टोटल 7 कैपेसिटी है उसका, तो हमें और 2 यूनिट्स कहीं ना कहीं से देना है. तो कहाँ से देंगे हम? सेकंड जो वेयर हाउस है वहां से हम इमीडिएटली, जो सेकंड वेयर हाउस है वहां से हम वो सप्लाई करेंगे. ठीक है, तो A का जो कैपेसिटी है पूरा हो गया, 5 + 2 बिकम्स 7. ठीक है, तो हमने यहाँ पे सप्लाई कॉलम में 7 डाल दिया. ठीक है, एंड यहाँ पे डिमांड कॉलम में 5, क्योंकि P का डिमांड जो है वो 5 है, हमें वो एक्सीड नहीं करना है. जैसे हम सुडोकू खेलते हैं ना, सेम पैटर्न से हमें करना है, बट यहाँ पे हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं कि 1 to 9 नंबर देना है. हमारा एक ही रिस्ट्रिक्शंस है, जितने सप्लाई है, जितने डिमांड है, वो पर्टिकुलरली उस कॉलम, उस रो में फिट होने चाहिए. राइट, देन यहाँ पे Q ने 2, 8 में से 2 यहाँ पे A को सेंड कर दिया. अब बचे कितने? 6. और B की रिक्वायरमेंट कितनी है? डिमांड 8 है, सॉरी 10 है B की डिमांड सप्लाई. ठीक है, और Q में कितना है टोटल? 8. तो यहाँ पे 2 हमने डिनोट किया, बचा 6. तो 6 कहाँ पे जाएगा? B में जाएगा. ठीक है, तो B में 6 जाएगा, तो यहाँ पे टोटल उनका सप्लाई जो कैपेसिटी है वो 10 का है. राइट, तो बचे 4. ठीक है, एंड देन डिमांड जो है 7 है. इस तरीके से हमें बाइफरकेट करते जाना है सिंपली. सो हमें देखना है वेयर हाउस के जो डिमांड है वो कितने हैं, ठीक है, और सप्लाई कितना है.
तो सिंपली जब हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे हम ये पर्टिकुलरली टेबल ड्रॉ करेंगे, वेयर हाउस PQRS प्लान्स ABC, नीचे डिमांड लिखेंगे एंड देन एक साइड में हम सप्लाई लिखेंगे। अब डिमांड यहाँ पे क्यों लिखा है, बिकॉज PQRS का जो कॉलम्स है उसमें हमें डिमांड्स दिखाने हैं। P का डिमांड इतना है, एक्स R का डिमांड इतना है, ठीक है, ये हमें डिनोट करना है। एंड जो कैपेसिटी है उसको हम सप्लाई नाम देंगे, और A की कैपेसिटी कितनी है 7 यूनिट्स की, B की कैपेसिटी कितनी है 10 यूनिट्स की, और C की कैपेसिटी कितनी है 18 यूनिट्स की, ठीक है। तो टोटल 35/35 हो रहा है, सप्लाई 35 है और डिमांड भी 35 है, दैट इज अ बैलेंस्ड वन, ठीक है। इस तरीके से हमें हमारे जो डिमांड एंड सप्लाई को डिनोट करना है। अब उसके बाद जब हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे ना, तो हमारा जो टोटल कॉस्ट आएगा 5 × 38। अब ये 38 कहाँ से आया, हमारे क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी एक टेबल दिया गया है कॉस्ट का। द यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज एज फॉलो। सो ए एंड पी का जो कॉस्ट है दैट इज 38। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट होगा या फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट करने के बाद ही हमें उसका जो टोटल कॉस्ट है वो पता चलेगा, ठीक है। अब ये नाम से जो मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, अब हम लोग देखेंगे, देखिए अपर साइड में हमारे हेड में नॉर्थ है, ठीक है। एनोटेशंस के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है। यहां से हम एक सेंटर लेंगे। सो दिस इज नॉर्थ, ये जो पोर्शन ऊपर जा रहा है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, एंड ये जो है ईस्ट है हमारे राइट में, एंड हमारे लेफ्ट में वेस्ट है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बोला है, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है, ये वाला कॉर्नर है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में से हम लोग क्या करेंगे, हमारे इस मेथड में से जो नॉर्थ साइड का जो वेस्ट कॉर्नर है वहां से हम नंबरिंग शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नंबरिंग शुरू होगा वो यहाँ से, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो है यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। एंड देन वो धीरे 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 करते करते कहाँ पे जाएगा, साउथ ईस्ट तक चला जाएगा, या फिर जितने भी वेरिएबल्स है सप्लाई डिमांड जब तक कवर नहीं होता है तब तक हम वो उसी पोजीशन से नीचे चले जाएंगे। सो बेसिकली शुरुआत हमें कहाँ से करनी है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से, यानी सबसे पहले जो प्लांट है वहां से हमें शुरू करना है, ठीक है। ये यहाँ पे हुआ, देन हमने यहाँ से एक एरो लिया, ठीक है, और हमने उसको आगे बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो डिमांड है उसको हमने फुलफिल किया। सो बेसिकली ओवरऑल नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में हमें एक टेबल ड्रॉ करना है, नॉर्थ वेस्टर्न जो लोकेशन है वहां से हमें वो डिनोशन या फिर उसको जो नंबर ऑफ सप्लाईज एंड डिमांड को मार्क करना है, ठीक है। वो मार्क करते 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 हम कहाँ तक जाएंगे, हम इस पोजीशन तक पहुंचेंगे, हमारा जो साउथ ईस्ट पोजीशन है इस पोजीशन तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो दिस इज साउथ एंड ये है ईस्ट हमारा यहाँ पे। तो साउथ ईस्ट तक हम लोग वो जाएंगे। जरूरी नहीं कि पर्टिकुलरली जो एरोज दिया है वैसे ही हमें जाना है, इट डिपेंड्स कि आपके डिनोशंस कैसे जा रहे हैं, बट ये ना ही पैरेलल चलेगा ना ही स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ये कहीं ना कहीं एक वर्टिकल या फिर एक एंगल लेते हुए आगे बढ़ेगा। तो दिस इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, यहाँ पे हमने टोटल कॉस्ट लिए अभी, ठीक है। 5 × 38, 2 × 60, 6 × 60, 4 × 80, 3 × 120 एंड 15 × 40। ये करते करते हमारे पास नंबरिंग्स आ गए सारे फैक्टर्स के, सारे प्रोडक्ट्स के, ठीक है। उनका हमने टोटल किया, एडिशन किया, एंड देन इनिशियल बेसिक फिजिबल जो है हमारा 1950 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, देखिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, जैसे हम बात कर रहे थे ये नॉर्थ है, ये हमारे लिए वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से हमें शुरू करना है। And allocate value to the current northwest corner cell and subtract from the supply and demand values with respect to the current northwest corner. For example, demand is 5 and supply is 7, so in supply remains 2, then the column P is exhausted. So इस तरीके से ये theoretical part को मैंने आपको डायरेक्टली टेबल में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नाउ
नेक्स्ट स्टेप इज ऑफ एलसीएम, ठीक है। सो एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे, सेम टेबल हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। अब एलसीएम में हमें कुछ स्टेप्स यहाँ पे नीचे दिए गए। सबसे पहले चेक वेदर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, इफ इट इज नॉट इक्वल वी नीड टू ऐड डमी, हियर इट इज इक्वल, दैट इज 35। सो फाइंड द मिनिमम ऑफ द वैल्यूज इन द कॉस्ट मैट्रिक्स, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ द वैल्यूज इन द कॉस्ट मैट्रिक्स, क्यों मिनिमम, बिकॉज हमारा जो मेथड है दैट इज लीस्ट कॉस्ट मेथड, सबसे कम वाला जो कॉस्ट है वो मेथड हमें लेना है, ठीक है। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड में सबसे कम वाला कॉस्ट हमारे टेबल में क्या दिख रहा है, तो उस तरीके से हम वो एलोकेट करते जाएंगे, ठीक है। सो टेबल को हमें अच्छे से देखना है, टेबल को अच्छे से ड्रॉ करना है, टेबल को अच्छे तरीके से हमें कहीं ना कहीं पढ़ना है, ऑब्जर्व करना है, उसके बाद ही हमें वो आगे करना है। सो वे फाइंड द मिनिमम ऑफ द वैल्यूज इन द कॉस्ट मैट्रिक्स, जो हमारा कॉस्ट मैट्रिक्स है उसमें से हमें मिनिमम वैल्यूज लेने हैं। सो दैट इज फाइंड द मिनिमम, हियर मिनिमम मैट्रिक्स इज 20, demand is 8 and supply is 18, ठीक है। thus we put 8 in cell CQ, now the column Q is exhausted, हमारे लिए CQ का हमें वैल्यू लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो कॉस्ट है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। सो लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ बिट कि ये मिनिमम कॉस्ट कैसे आ रहा है। देखिए हमें बोला है फाइंड द मैट्रिक्स मिनिमम, मिनिमम मैट्रिक्स कौन सा है पूरे टेबल में, पूरे टेबल में हमें देखना है। So here 38, 60, 100, 24, 140, 60, 80, 120, 80, 20, 120 and 40. So minimum कौन सा है? This is 20. ठीक है। अब 20 में जब हम डिनोट करने वाले हैं तो हमें चेक करना है डिमांड कितना है उस पर्टिकुलर रो में, ठीक है, और सप्लाई कितना है 18। So when demand is 8 and supply is 18, तो हमें मिनिमम नंबर ही लेना है। देखिए डिमांड कम रहेगा और सप्लाई ज्यादा रहेगा तो ओवरफ्लो नहीं करना है आपको। अगर बिस्किट्स लेने हैं, 2 पैकेट ऑफ बिस्किट की रिक्वायरमेंट है तो आप उतना ही खरीदोगे, राइट। आपको किराना वाला ये नहीं बोलेगा कि भाई हमारे पास गोडाउन में और सामान पड़ा है आप लेकर जाओ, बिकॉज यू रिक्वायर ओनली 2 यूनिट ऑफ बिस्किट्स, राइट। सो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, क्यू में कितना सप्लाई है 18 है, अब उसमें से हमने 8 ले लिया और डिमांड फुलफिल कर दिया, लेकिन हमारा सप्लाई फुलफिल हुआ क्या, नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद 20 के बाद कौन सा नंबर जो है एकदम लीस्ट है, तो 20 के बाद 60, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे 8 को सेटिस्फाई करना है, ये कॉलम जो है पूरा फुलफिल हो गया तो 60 नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद कौन से वाला नंबर आएगा, तो वो 80 आएगा, ठीक है। लेकिन 80 में हम पूरा अब यहाँ पे 10 सप्लाई बचा है तो पूरा 10 दे सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हमें डिमांड जो है वो 5 का है, लेकिन पूरा 5 दे सकते हैं क्या, तो वो भी नहीं दे सकते। क्यों 5 नहीं दे सकते, बिकॉज यहाँ पे हमें आगे भी और फुलफिल करने हैं, ठीक है। बी का भी हमें सप्लाई फुलफिल करना है तो अकॉर्डिंगली वी नीड टू चेक। सो ये 80 के जगह पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बी वाला जो प्लांट है और आर वाला जो वेयर हाउस है उस 80 पे ध्यान देंगे एंड जितना डिमांड है वो डिमांड पूरा एलोकेट कर लेंगे, सो दैट यहाँ पे हमें सेकंड 80 में कितना देना है वो पता चलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने 5 दे दिए, ठीक है, तो ये कॉलम पूरा फुलफिल हो जाएगा, तो ये 7 वाला जो डिमांड है और ये जो 10 वाला सप्लाई है वो फुलफिल कैसे होगा, ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, राइट। तो इस तरीके से हमें लीस्ट कॉस्ट मेथड को आगे बढ़ाना है। सो हियर find the next minimum value, the next minimum value is 24, demand is 15 and supply is 7, right. So thus we can give 7 unit in cell AS, now row A is exhausted and demand 8 remains. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने 20 के बाद डायरेक्टली 60 और 80 लिया, मेरे नजर से 24 स्किप हो गया था, राइट। तो एग्जाम में अपने साथ ये होने के चांसेस हैं, तो हर एक एलिमेंट को, हर एक वेरिएबल्स को हमें ध्यान से देखना है और उस तरीके से हमें डिनोटिंग जो है वो करना है। तो एस में हम हमारा जो डिमांड है वो 15 है, हमारा जो सप्लाई है वो 7 है, तो हम पूरा का पूरा 7 जो है सप्लाई को फुलफिल कर सकते हैं।
because we have other options to fulfill our demand, right? Then उसके बाद थर्ड में उन्होंने बोला है द नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू इज 38, दैट इज एपी सेल, सी हियर 38। तो घाई घाई में मेरी तरह अगर आप एकदम जल्दी में रहोगे और आपने सॉल्व सॉल्व करने के लिए लिया है, ठीक है, तो ये सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस है, राइट? देखिए सिंपल, मैंने क्या किया, 20 पकड़ा एंड आगे पीछे देखा, मुझे कुछ नंबर्स नहीं दिखाई दिए, मैंने 60 पकड़ा, देन लीस्ट कॉस्ट, उसके बाद 80 लीस्ट कॉस्ट गया एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग यू अबाउट दिस 80, बी आर वाला 80 एंड देन सेंड सीपी वाला 80। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 24 भी है एंड उसके बाद 38 भी है, ये स्किप हो गया। तो मे बी इस वजह से आपके जो सॉल्यूशन है वो रॉन्ग आने के चांसेस है, या फिर आपको नंबर ऑफ टाइम्स टेबल बनाना पड़ेगा। सो बेसिकली जब भी आप ये टेबल बनाओगे, रफ में आप एक सीरीज बना के रखिए लास्ट पेज ऑफ जो आंसर शीट है वहां पे, कि आपका लिस्ट कॉस्ट मेथड कैसे इंक्रीज हो रहा है। सो फर्स्ट इज 20 सबसे पहले, देन 24, देन 38 एंड उसके बाद कुछ और है क्या, नहीं, देन 60, देन 80, then 100, then 120, sorry, 40 is also here, right? So 20, 24, 38, 40, 60, 80, 100, 120, 140, ऐसा आपको सीरीज बनाना है एंड अकॉर्डिंगली आपके जो डिमांड एंड सप्लाई है वो फुलफिल करना है। सो ओवरऑल बेसिकली इस मेथड में जो लीस्ट कॉस्ट मेथड है, वहां पे लीस्ट कॉस्ट जो है वहां पे सबसे पहले हमें नंबरिंग देना है, सप्लाई और डिमांड को फुलफिल करना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो फैक्टराइजेशन है, जो उनका मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट है, वो हमें निकालना है। सो 140 इंटू 3, 80 इंटू 2, 20 इंटू 8, 80 इंटू 7, 40 इंटू 8, 24 इंटू 7, एंड ये नंबर्स हमें आएंगे, टोटल करना है उनका। सो दैट इज इनिशियल बेसिक फिजिबल इज 1788, राइट? तो ये हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड से हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज वैम, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में देखिए आपको नए नए कुछ चीज आए हैं। नंबर वन इज प्लान वेयर हाउस PQRS, प्लांट ABC, डिमांड, सप्लाई। नाउ यहाँ पे पेनल्टीज है, रो पेनल्टीज 1 2 3 4, ये आगे बढ़ेगा या कम होगा पेनल्टीज, यू नेवर नो कितने पेनल्टीज आएंगे, लेकिन आपको उतना वो स्पेस बचा के रखना है। एंड देन कॉलम पेनल्टीज, तो रो एंड कॉलम पेनल्टीज है। वैम मेथड को अगले लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे, मुझे कोई रश नहीं करना है, जल्दी जल्दी खत्म नहीं करना है। बेसिकली ये दो मेथड इजी थे, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में समझा दिया है। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो यू कैन गिव मी अ मैसेज इन दी DM और चैट बॉक्स, ठीक है। बेसिकली ओपनली अगर आप मैसेज करोगे विदाउट डायरेक्ट मैसेज या पर्सनल मैसेज इन दी जूम मीटिंग, दैट विल बी गुड, सो अदर्स विल अंडरस्टैंड किसका डाउट है एंड किसने क्या पूछा है, सो दैट अकॉर्डिंगली वो कनेक्शन बनता जाएगा, राइट? सो वैम मेथड में हमें रो पेनाल्टीज एंड कॉलम पेनाल्टीज बनाने हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उनका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लेंगे। अभी यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो दे कैन आस्क, और एल्स वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस लेक्चर।